Hello students, I hope that you all are fine and doing your work. We are reading lesson first of Vistas, the third level, written by Jack Finney. In this lesson, the writer tells us the hardships of war, the predicament that a person has to follow after war. Here he presents it through Charlie, who is 31 years old. Charlie is the narrator of the story. So wherever I has been written in the lesson, it has been used for Charlie. The station name is Grand Central Station. In reality there were two levels, but Charlie started believing that there was a third level also, and he thought that it could take him to the past. He told about this to his friend, psychiatrist friend, and he called it a waking dream wish fulfillment. What did he call? Waking dream wish fulfillment. He said that Charlie wanted to be away from modern world's insecurity, fear, war, worry, and that is why he started believing, he started imagining things. He started imagining that about the third level. Charlie, what was Charlie's hobby? Another question. Charlie was in habit of, he had the hobby of stamp collection, and his friend called it Sam. Sam was his name, his psychiatrist friend. He called it a temporary refuge from reality, कि वो सच से बचना चाहता है. But Charlie supported his answer by saying that his grandfather was also in habit of stamp collection. Even President Roosevelt also collected stamp. So here now he narrates the incident, what happened actually, which led him to believe that there was a third level at Grand Central Station. One day when he was working late in the office, while going back home, he decided to take the subway from Grand Central Station. And the last that we read up to here, he wanted to go home where his wife Louisa was waiting. Name of Charlie's wife, Louisa. Then he turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue, name of place, and went down the steps to the first level. क्योंकि सबवे है, नीचे से है, पहले फर्स्ट लेवल पर वो गए. Where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from. और कहते हैं पहले फर्स्ट लेवल पर गए, फर्स्ट फ्लोर पर, फिर सेकंड पर, ये शहर की तरफ जाते हैं, ये सबर्बन है, आसपास के कस्बों से जोड़ता है. Then ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. क्या हुआ? कहते हैं जैसे ही मैं वहाँ से मुड़ा, अंदर जाने लगा, ducked into, थोड़ा सा नीचे झुके, आर्च डोरवे था. आर्च होता है ये उल्टा यू के आकार का जो दरवाज़ा बना होता है, इस तरह का, और मैं मानो खो गया. अब खो कैसे गए? कहते हैं मेरे साथ दैट इज़ इजी टू डू, अक्सर ऐसा हो जाता है. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम. वो कहते हैं यहाँ सैकड़ों बार आए हैं. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. लेकिन अक्सर यहाँ उनसे मिलते रहते हैं, कभी नए दरवाजे, कभी सीढ़ियाँ, कभी कॉरिडोर्स. सो बेसिकली चार्ली इज सफरिंग फ्रॉम सम हेल्यूसिनेशंस कह सकते हैं इसे, कि उसे हेल्यूसिनेट होते हैं कि वो एक थर्ड लेवल है जहाँ नई नई उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पर्टिकुलरली वो चाहता है कि यहाँ एक ऐसा रास्ता हो जहाँ से वो अपने सारे दुख दर्द भूलकर आज के समय से निकलकर पास्ट में जा सके, जहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिता सके. इसीलिए उसे लगता है, वो इमेजिन करने लगता है वहाँ पहुँच के कि कभी नए दरवाजे कहीं दिखाई देने लगते हैं, कभी कुछ. इन रियलिटी ऐसा नहीं है. वंस आई गोट इनटू, वो एग्जाम्पल भी देता है, कहता है मैं एक बार, मुझे एक टनल दिखाई दी, सुरंग, that was around a mile long, and when he came out it was the lobby of Roosevelt Hotel. This is not real. Students remember कि this is not real, it is only Charlie's hallucination, Charlie's imagination. ऐसा उसे लगता है. एक और बार उसने क्या सोचा, that he came up in an office building on 46th Street. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 ब्लॉक यानी 3 बिल्डिंग दूर दूसरी बिल्डिंग में वो निकला. ऐसे उसे लगता है कि यहाँ बहुत सारी टनल्स बनी हुई हैं. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट डज चार्ली कंपेयर द ग्रैंड सेंट्रल विद? व्हाट डज चार्ली कंपेयर द ग्रैंड सेंट्रल विद? ही कंपेयर्स द ग्रैंड सेंट्रल विद अ ट्री. एक पेड़ के साथ वो उसे कंपेयर करते हैं. pushing out new corridors and staircases like roots.
और नए नए कॉरिडोर और स्टेयर केसेस मानो उसे जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ें बढ़ती रहती हैं, टहनियाँ बढ़ती हैं, उसी तरह से चार्ली को लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी सजीव है और अपने आप बढ़ता रहता है। कभी नए दरवाजे बन जाते हैं, कभी नई खिड़कियाँ, कभी नए सीढ़ियाँ, इस तरह से बनते रहते हैं। दिस इज़ नॉट रियल, ये हमें पता है। देर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, और उसे लगता है कि देर इज़ परहैप्स अ लॉन्ग टनल, जो कहाँ है एंड नोबडी नोज अबाउट इट, एंड ही कॉल्स इट, ही फील्स दैट इट इज़ ways under the city, पूरे शहर के नीचे है, on its way to टाइम्स स्क्वायर, टाइम्स स्क्वायर से होती हुई सेंट्रल पार्क तक। these are the name of places, आप समझ ही गए होंगे। as initials are capital and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, कहते हैं हो भी सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट की तरह है, यानी कि वो हमेशा से बहुत सारे लोगों को एंट्री नहीं मानता, तो निगेटिव है, मतलब बचना चाहता है। एंट्री नहीं कहता, एग्जिट कहता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। तो हो सकता है कोई टनल है, ऐसा उसे लगता है, एक ऐसी सुरंग जो पूरे शहर के नीचे नीचे है और वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह तक वो जा सकते हैं। दैट इज़ हाउ द टनल आई गोट इनटू, कहते हैं और शायद यही हुआ कि एक टनल मुझे एक दिन दिखाई दी और मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब एक दिन का वो, जिस दिन का ये यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल स्टार्ट किया इंसिडेंट, वो बता रहे हैं हुआ क्या। तो जैसे ही वो ग्रैंड सेकेंड लेवल पर आए उसके बाद उन्हें एक अलग रास्ता दिखाई दिया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, कॉरिडोर जिसमें थे, कॉरिडोर आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, कॉरिडोर जो बाहरी छोटी लॉबी होती है चलने के लिए। अब जिस स्टेशन पर जैसे जो प्लेटफॉर्म्स सॉर्ट ऑफ बने हुए होते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे इनफैक्ट कॉरिडोर, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रेवल करते हैं, जाते हैं पैदल। अब वो लेफ्ट की तरफ मानो वो कॉरिडोर मुड़ रहा था, स्लैंटिंग डाउनवर्ड, थोड़ा नीचे की तरफ। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, कहते मुझे पता था कि ये रास्ता कहीं गलत जा रहा है, ये मेरे घर की तरफ नहीं जाएगा, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन क्यूरियस हो गया मैं और देखना चाहता था कि आखिर ये रास्ता कहाँ तक जा रहा है। All I could hear was the empty sounds of my footsteps and I didn't pass a soul. अगर कोई आवाज़ आ रही थी तो केवल मेरे पैरों की, यानी कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था, नॉट a soul यानी नॉट a person, nobody was there. Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. तो टनल जो इस तरह अंडरग्राउंड ग्रेव्स होती हैं, तो उसके दूसरी तरफ अगर आप चलते चलते आपको कुछ आवाज़ आ रही है, कोई उसके बाहर खड़े होकर कोई बात कर रहा है, तो वो अंदर गूंजती है। चार्ली कहते हैं फिर मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई दी, ऐसे होलो खोखला सा आवाज़, जैसे कि ऐसे होता है मान लो कोई ओपन स्पेस है, खाली जगह है और लोग बात कर रहे हैं। टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, टनल में टर्न आया लेफ्ट एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरे और कहाँ पहुँच गए ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो थर्ड लेवल पर पहुँच गए, जबकि इन रियलिटी तो वहाँ था नहीं, ऐसा चार्ली इमेजिन कर रहे हैं कि ये सब हुआ। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। चार्ली कहते हैं एक बार तो मुझे लगा कि मैं वापस सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ घूम घाम कर पूरा, लेकिन फिर देखिए अब ये यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अनयूजुअल थिंग्स चार्ली ने वहाँ क्या देखी जिससे उसे यकीन हो गया दैट ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल, ही वॉज नॉट ऑन द सेकेंड लेवल। क्या क्या चीज़ें देखी? रूम वॉज स्मॉलर, ये सब आपको याद रखना है। रूम वॉज स्मॉलर, वहाँ जो कमरा था छोटा था। टिकट विंडोज कम थी, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। इनफैक्ट द इंफॉर्मेशन बूथ दैट वॉज इन सेंटर, जहाँ से लोग जानकारी ले सकते हैं, दैट वॉज मेड ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग। द मैन इन द बूथ, जो व्यक्ति वहाँ बूथ में उस समय इंफॉर्मेशन बूथ में बैठे हुए थे, ही वॉज वेयरिंग अ ग्रीन आई शेड, चश्मे लगाए हुए उन्होंने, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे। उस समय का जो फैशन था उसके अनुसार वो चल रहे थे। लाइट्स बड़ी डिम थी एंड दे वर फ्लिकरिंग, फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी। देन आई सो वाई, और ऐसा क्यों? बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। इतना पुराना था कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। और क्या चीज़ देखी? देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, स्पिटून्स रखे थे, स्पिटून्स थूकदान
फ्लोर पर रखे हुए थे। और अक्रॉस द स्टेशन, साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और देखी, एक ग्लिंट ऑफ लाइट कोट माई आई, एक चमक मेरी आंखों पर लगी। और जब मैंने देखा तो क्या था, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4-buttoned suit with tiny lapels. He had a big black handlebar mustache. पॉकेट में जो घड़ी रखते हैं वो निकाली, समय देखा, वापस रखी। उनका हुलिया बता रहे हैं चार्ली, उन्होंने पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे, मुस्टैश कैसी थी, मूछें रखी हुई थी, हैंडल बार यानी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई। एक हर समय का एक फैशन होता है। तो उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति उस समय सामने खड़े थे, जो फैशन वो फॉलो कर रहे थे वो काफ़ी पुराना था। आप लेकिन अभी आज के लिए केवल यहाँ तक याद रखिए उन्होंने क्या चीज़ें देखी, इससे आगे हम कल करेंगे पूरा। ये सब कि फ्यूअर टिकट विंडोज, रूम वॉज स्मॉलर, इंफॉर्मेशन बूथ वॉज वुडन, द मैन वॉज वियरिंग ग्रीन आई शेड, देर वर, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, देर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ठीक है, देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी विल रीड टुमारो। थैंक यू।